The Neoclassical period. Neoclassical period between 1660 से 1798 is roughly marked as Neoclassical period in the history of English literature. Neoclassical period is known as Neoclassical age because its writer looked back to the ideals and art forms of classical times. They emphasized even more than their Renaissance predecessors on the classical ideals of order and rational controls. 18th century writers replaced Renaissance emphasis on the imagination, on invention, experimentation, on mysticism. Their emphasis was on order and reason, on restraint, on common sense, and on religious, political, economic, and philosophical conservatism. This age, Neoclassical, is known as Augustan age. The name comes from that of the Roman Emperor Augustus, who ruled when Virgil, Horace, and Ovid were writing, and suggests a classical period of literature. The age Neoclassical of the Emperor Augustus was the golden period, classical age of Roman Empire. Similarly, 18th century is also known as golden period in the history of English literature. The writers of the 18th century imitated the literary forms and themes of original Augustus writers such as Virgil and Horace. This time period is divided into two parts, the Restoration period and the age of Dryden, and the Classical age or the Augustan age. The Classical age is further divided into two distinct ages, age of Pope and age of Johnson. The period from 1660 to 1700 is called the Restoration period because monarchy was restored in England and Charles II came back to England from his exile in France and became the king. It is also known as the Age of Dryden because Dryden was the most significant literary figure of the age. The Restoration poetry was mostly realistic and satirical. It was mostly written in heroic couplet, of which Dryden was the greatest master. Dryden is the greatest literary figure of the Restoration. Dryden's poem Astrea Redux 1660 Astrea Redux ड्राइडन पोइम है सेलिब्रेटेड चार्ल्स सेकेंड से रिटर्न एस्ट्रिया रिडक्स ड्राइडन की पोइम है जो सेलिब्रेट करती है चार्ल्स सेकेंड की रिटर्न ड्राइडन्स एनस मिराबिलिस मिरेकल ईयर एनस मिराबिलिस डिस्क्राइब द ड्राइडन की एनस मिराबिलिस डिस्क्राइब द टेरर ऑफ ग्रेट फायर इन लंदन इन 1666. Dryden appeared as the chief literary champion of the monarchy in his famous satirical allegory Absalom and Achitophel. John Dryden is now remembered for his greatest mock heroic poem Macflanoy. Macflanoy is a personal attack on his rival poet Thomas Shadwell. Dryden's other important poems are Religio Lacey and the Hind and the Painter. John Dryden popularized heroic couplets in his dramas. Aurangzeb, the rival ladies, the conquest of Granda and Don Sebastian, etc. are some of John Dryden's famous plays. Aurangzeb, the rival ladies, the conquest of Granda, Don Sebastian, etc. are famous plays of John Dryden. His dramatic masterpiece is All for Love. Dryden का masterpiece dramatic All for Love. Dryden polished the plot of Shakespeare's Antony and Cleopatra in his All for Love. As a prose writer, Dryden's work as an essay on dramatic poesy is worth mentioning. John Bunyan, an English writer and Puritan preacher,
John Bunyan, an English writer and Puritan preacher, is best remembered as the author of Christian Allegory, The Pilgrim's Progress, The Comedy of Manners. The Restoration period produced a brilliant group of dramatists who made this age immortal in the history of English literature. Their plays are hard and witty, comic and immoral. George Etheredge introduced comedy of manner. His plays are She Would If She Could, The Man of Maud, and Love in a Tub. William Congreve is the greatest of Restoration comedy writers. His love for love, The Old Bachelor, The Way of the World, and The Double Dealer are very popular. William Wycherley is another important Restoration comedy playwright. His Country Wife and Love in a Wood are important plays. Sir John Vanbrugh's best three comedies are The Provoked Wife, The Relapse, and The Confidence Gracie. The Classical or Augustan Age, 18th century. The 18th century in English literature is called the Classical Age or the Augustan Age. We also call it the Age of Reason or the Age of Good Sense or Age of the Common Sense. The earlier part of the 18th century is called the Age of Pope, since Alexander Pope was a dominating figure in that period. The later half of the Augustan was dominated Samuel Johnson. They called Age of Johnson. This age started showing the clear shift from classicism, and there were clear signs of revolt in favor of the Romantic spirit. It was especially noticeable in the field of poetry. The poets who showed romantic leanings in their poetry are the precursors of the Romantic revival. Due to the romantic inclinations, we also call the age of Johnson the age of transition in English literature. Notable writers: Alexander Pope. Alexander Pope was the undisputed master of both prose and verse. Pope wrote many poems and mock epics attacking his rival poets and social conditions of England. His The Dunciad is a landmark mock heroic narrative poem. Alexander Pope wrote an essay on criticism 1711 in heroic couplets. In 1712, Pope published The Rape of the Lock mock epic, one of the most brilliant poems in English language. An essay on man, of the characters of women, and the translation of Iliad and Odyssey are the other major works of Alexander Pope. An essay on man, Alexander Pope, of the characters of men, women, Alexander Pope, and translation of Iliad and Odyssey by Alexander Pope. Oliver Goldsmith. Oliver Goldsmith wrote two popular poems in the heroic couplets. Oliver Goldsmith neoclassical age में है, रेस्टोरेशन में. दे आर द ट्रेवलर एंड द डेजर्टेड विलेज. ओलिवर स्मिथ की है, कौन सी ऑगस्टन एज में है, कौन सी लिखी है. रोट टू पॉपुलर पोएम्स इन हीरोइक कपलेट से. ओलिवर गोल्डस्मिथ न्यू क्लासिकल एज, द ट्रेवलर एंड द डेजर्टेड विलेज. द ट्रेवलर एंड द डेजर्टेड विलेज बाई द ट्रेवलर एंड द डेजर्टेड विलेज बाई ओलिवर गोल्डस्मिथ. द ट्रेवलर एंड द डेजर्टेड विलेज बाई ओलिवर गोल्डस्मिथ. ओलिवर गोल्डस्मिथ न्यू क्लासिकल एज, ऑगस्टन एज. जेम्स थॉमसन, अलेक्जेंडर पॉप की एज में है ना. जेम्स थॉमसन न्यू क्लासिकल एज, ऑगस्टन एज में है जेम्स थॉमसन. जेम्स थॉमसन इज रिमेंबर्ड फॉर हिज long series of descriptive passages dealing with natural scenes in his poem The Seasons. He wrote James Thompson wrote another important poem, The Castle of Indolence. The Castle of Indolence by James Thompson. The Castle of Indolence, The Seasons poem by James Thompson. The Seasons, The Castle of Indolence by James Thompson. The Seasons, The Castle of Indolence by Thompson. The Traveller and the Deserted Village by Oliver Goldsmith. An essay on men by Alexander Pope, of the character of women Alexander Pope, and translation of Iliad and Odyssey by Alexander Pope. Oliver Goldsmith की है The Deserted Village और The Traveller.
ओलिवर गोल्डस्मिथ। जेम्स थॉमसन की है द सीजन्स, और जेम्स थॉमसन की है निकोलस विलेज में जेम्स थॉमसन की द सीजन्स और द कैसल ऑफ इंडोलेंस जेम्स थॉमसन। एडवर्ड यंग निकोलस विलेज में नहीं है एडवर्ड यंग प्रोड्यूस्ड a large amount of literary work of variable quality. The Last Day by Edward Young, The Love of Fame Edward Young, and The Force of Religion are some of them Edward Young works. तो कौन एडवर्ड यंग की है? द लास्ट डे एडवर्ड यंग, द लव ऑफ फेम एडवर्ड यंग ये क्लासिकल है। द एडवर्ड यंग की है द लास्ट डे, द लव ऑफ फेम एडवर्ड यंग, द फोर्स ऑफ रिलीजन एडवर्ड यंग। तो कौन कौन सी न्यू क्लासिकल? एलेक्जेंडर पोप की है एसे ऑन मैन, यानी ट्रांसलेशन किया था इडियड एंड ओडिसी का, और ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ वीमेन ये है एलेक्जेंडर पोप के निकोलस विलेज में ऑगस्टाइन में। ओलिवर गोल्डस्मिथ की दो है कौन कौन सी? ऑफ द ट्रेवलर एंड द डेजर्टेड विलेज ओलिवर गोल्डस्मिथ। जेम्स थॉमसन की है निकोलस विलेज में द सीजन्स, और जेम्स थॉमसन की है निकोलस विलेज में, और द कैसल ऑफ इंडोलेंस जेम्स थॉमसन की। एडवर्ड यंग की है द लास्ट डे एडवर्ड यंग की निकोलस विलेज एडवर्ड यंग द लास्ट डे, और द लव ऑफ फेम ये एडवर्ड यंग का है, और द फोर्स ऑफ रिलीजन आर सम ऑफ एडवर्ड यंग बुक्स। रॉबर्ट ब्लेयर ये भी क्लासिकल एज में है, वेस्टर्न एज में। रॉबर्ट ब्लेयर फेम इज चीफली डिपेंडेंट ऑन हिज पोइम द ग्रेव। रॉबर्ट ब्लेयर पोइट है कौन सी के? न्यू क्लासिकल एज के। इनकी जो चीफली डिपेंडेंट ऑन हिज पोइम है फेम किस पे है? द ग्रेव रॉबर्ट ब्लेयर की है। द ग्रेव किसकी है? रॉबर्ट ब्लेयर की है द ग्रेव। रॉबर्ट ब्लेयर की कौन सी पोइम है? द ग्रेव किसकी पोइम है? रॉबर्ट ब्लेयर की। रॉबर्ट द ग्रेव इज अ लॉन्ग ब्लैंक वर्स पोइम ऑफ मेडिटेशन ऑन मैंस मॉरलिटी। द ग्रेव है ये रॉबर्ट ब्लेयर की लॉन्ग ब्लैंक वर्स पोइम है द ग्रेव इसकी रॉबर्ट ब्लेयर की है, और मेडिटेशन ऑन मैंस मॉरलिटी पर ध्यान दिया है। थॉमस ग्रे 1716 से 1711 न्यू क्लासिकल एज के ही है थॉमस ग्रे, और थॉमस ग्रे की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। थॉमस ग्रे न्यू क्लासिकल एज की पोइट। थॉमस ग्रे न्यू क्लासिकल एज में कौन कौन है? थॉमस ग्रे और रॉबर्ट ब्लेयर की है द ग्रेव। तो थॉमस ग्रे, रॉबर्ट ब्लेयर, एलेक्जेंडर पोप, ओलिवर गोल्डस्मिथ, और रॉबर्ट ब्लेयर, ओलिवर गोल्डस्मिथ, थॉमस ग्रे, एलेक्जेंडर पोप, ओलिवर गोल्डस्मिथ, रॉबर्ट ब्लेयर, एडवर्ड यंग, निकोलस विलेज, जेम्स थॉमसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ, ये सारे है। एलेक्जेंडर पोप की है एसे ऑन मैन और द कैरेक्टर्स ऑफ वीमेन, इलियड और ओडिसी का ट्रांसलेशन किया और ये एलेक्जेंडर पोप ने। ओलिवर गोल्डस्मिथ है, इनकी दो रचनाएँ हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ की, द ट्रेवलर एंड द डेजर्टेड विलेज ओलिवर गोल्डस्मिथ। और जेम्स थॉमसन की है द सीजन्स और द कैसल ऑफ इंडोलेंस जेम्स थॉमसन की है। एडवर्ड यंग की है द लास्ट डे और द लव ऑफ फेम ये, और द लीजन ऑफ आर द फोर्स ऑफ रिलीजन ये भी एडवर्ड यंग की है। रॉबर्ट ब्लेयर की है द ग्रेव, ये मेरे कैसल में। थॉमस ग्रे की पोइम है फर्स्ट पोइम ऑफ थॉमस ग्रे, निकोलस विलेज की पोइट है। थॉमस ग्रे पोइम है ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज, ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज थॉमस ग्रे की है। थॉमस ग्रे की है ओड ऑन ए डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन, ओड ऑन ए डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज किसकी है? थॉमस ग्रे की है ओड ऑन ए डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज, ओड ऑन ए डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज किसकी है? थॉमस ग्रे की। Thomas Gray is remembered chiefly for his famous elegy written in country churchyard. Elegy written country churchyard किसकी है? थॉमस ग्रे की। और ओड कौन सी है? थॉमस ग्रे की ओड ऑन ए डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज, ओड ऑन ए डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज, ओड ऑन ए डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज किसकी? थॉमस ग्रे की। और एलेजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे की।
Other important points of Thomas Gray are Ode on a Favorite Cat, Ode on a Favorite Cat, Ode on Prospect of Eton College, ये भी किसकी है? Ode on a Distant Prospect of Eton College भी थॉमस ग्रे की है. Ode on Favorite Cat भी किसकी है? थॉमस ग्रे की. और एलिजी रिटर्न कंट्री जो थॉमस ग्रे की है. द बार्ड एंड द प्रोग्रेस ऑफ पोइट्री, द बार्ड एंड द प्रोग्रेस ऑफ पोइट्री भी किसकी है? थॉमस ग्रे की. द बार्ड एंड द प्रोग्रेस ऑफ पोइट्री भी किसकी है? ये और ये थॉमस ग्रे की. विलियम ब्लेक 1817 से लेकर विलियम ब्लेक भी निकोलस क्लेज के पोइट है. तो विलियम ब्लेक इज बोथ अ ग्रेट पोइट एंड आर्टिस्ट. विलियम ब्लेक जो निकोलस के पोइट भी है और ग्रेट आर्टिस्ट भी न्यूक्लासिकल एज के और सिमल जॉनसन एज के. ये विलियम ब्लेक की जो 2 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट लिरिक्स है वो है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस. सॉन्ग ऑफ इनोसेंस विलियम ब्लेक की है. सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस. सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस किसकी है? विलियम ब्लेक की. सॉन्ग कौन सी है? विलियम ब्लेक की. सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस. विलियम ब्लेक की जो फाइनेस्ट लिरिक है वो कौन सी है? द टाइगर. जो फाइनेस्ट लिरिक है विलियम ब्लेक की वो कौन सी है? द टाइगर. और इसके अलावा इनकी जो कलेक्शन है वो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस. रॉबर्ट बर्न्स. रॉबर्ट बर्न्स इज नॉन एज द नेशनल पोइट ऑफ स्कॉटलैंड. रॉबर्ट बर्न्स निकोलस क्लेज के पोइट है. रॉबर्ट बर्न्स इज नॉन एज नेशनल पोइट ऑफ स्कॉटलैंड. रॉबर्ट बर्न्स की जो पोइम है अ विंटर नाइट. रॉबर्ट बर्न्स ओ माई लव इज लाइक अ रेड रोज. रॉबर्ट बर्न्स की है. अ विंटर नाइट. रॉबर्ट बर्न्स ओ माई लव इज लाइक रेड रोज. रॉबर्ट बर्न्स की है. द होली फेयर. द विंटर नाइट और ओ माई लव लुक लाइक माई लव इज लाइक रेड रोज. रॉबर्ट बर्न्स की है. और द होली फेयर रॉबर्ट बर्न्स की है. रॉबर्ट बर्न्स की. सम ऑफ हिज मेजर पॉइंट्स. विलियम कॉपर, विलियम कॉलिंस एंड विलियम सैंडस्टोन आर अदर नोटेबल पोइट्स बिफोर द रोमांटिसिज्म. कौन है? विलियम कॉपर, विलियम कॉलिंस, विलियम सैंडस्टोन. विलियम कॉपर, विलियम कॉलिंस, कॉपर कॉलिंस सैंडस्टोन. कॉपर कॉलिंस सैंडस्टोन भी न्यू क्लासिकल एज के ही फेमस पोइट है. कॉपर कॉलिंस और सैंडस्टोन. कॉपर कॉलिंस सैंडस्टोन. विलियम कॉपर, विलियम कॉलिंस, विलियम सैंडस्टोन न्यू क्लासिकल एज की. The neoclassical period officially ended in 1798 when William Wordsworth and S.T. Coleridge published the lyrical period. अब है 18th सेंचुरी की प्रोच यानी न्यूक्लासिकल एज की प्रोच. रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन. तो न्यूक्लासिकल एज में जो प्रोज लिखे थे वो इसमें कौन है? रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन. न्यूक्लासिकल एज में ये 18th सेंचुरी के अंदर है रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन. सर रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन वर्क टुगेदर फॉर मैनी ईयर्स. सर किसने? स्टील और एडिसन ने, यानी रिचर्ड स्टील और एडिसन ने क्या किया था? साथ काम किया था. रिचर्ड स्टील स्टार्टेड द पीरियोडिकल. कौन सा पीरियोडिकल स्टार्ट किया था? रिचर्ड स्टील ने द टेटलर. कौन सा पीरियोडिकल स्टार्ट किया था? स्टील ने टेटलर, द स्पेक्टेटर, द गार्जियन, द इंग्लिशमैन एंड द रीडर. कौन से इसने? जो रिचर्ड स्टील है उसने द टेटलर, द स्पेक्टेटर, द गार्जियन, द टेटलर, द स्पेक्टेटर, द गार्जियन, द इंग्लिशमैन एंड द रीडर. यानी कि पाँच इसने जो क्या किए थे रिचर्ड स्टील ने पीरियोडिकल शुरू किए थे. कौन से थे? द टेटलर, द स्पेक्टेटर, द रीडर. और कौन से थे? द रीडर, द इंग्लिशमैन. और कौन से थे? द टेटलर, द स्पेक्टेटर, द इंग्लिशमैन, द रीडर, द गार्जियन. ये किसके? रिचर्ड स्टील के पीरियोडिकल है. जोसेफ एडिसन इसी में इनके साथ थे. कंट्रीब्यूटेड इन दीज पीरियोडिकल्स एंड रोट कॉलम्स लिखते थे उसमें जोसेफ एडिसन. द इमेजिनरी कैरेक्टर ऑफ सर रॉजर डी कर्ले वॉज वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी. जोनाथन स्विफ्ट. ये भी न्यूक्लासिकल एज में प्रोज राइटर थे. जोनाथन स्विफ्ट. कौन थे? जोनाथन स्विफ्ट. जोनाथन स्विफ्ट ऑगस्टन एज में थे. 1840 एज में जोनाथन स्विफ्ट जो थे, यानी कि जोनाथन स्विफ्ट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेटायरिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. जोनाथन स्विफ्ट थे वो ग्रेटेस्ट सेटायरिस्ट थे. तो जोनाथन स्विफ्ट थे, ऑगस्टन एज में थे. जोनाथन स्विफ्ट ऑगस्टन एज में थे. और क्या थे? जोनाथन स्विफ्ट ऑगस्टन एज में क्या थे? यानी कि ग्रेटेस्ट सेटायरिस्ट है जोनाथन स्विफ्ट. ऑगस्टन एज के प्रोज राइटर है जोनाथन स्विफ्ट.
Jonathan Swift's first noteworthy book was The Battle of the Books. The Battle of the Books was written by Jonathan Swift. Jonathan Swift ने लिखी थी द बैटल ऑफ द बुक्स। न्यू क्लासिकल एज के पोइट है, ये प्रोज राइटर है। जोनाथन स्विफ्ट लिखी थी द बैटल ऑफ द बुक्स, जोनाथन स्विफ्ट। अ टेल ऑफ अ टब इज रिलीजियस एलेगरी लाइक बनियंस पिलग्रिमेज प्रोग्रेस। जैसे बनियन की जो पिलग्रिमेज प्रोग्रेस है, वैसे ही अ टेल ऑफ टब ए टेल ऑफ टब भी क्या है, रिलीजियस एलेगरी है। टेल ऑफ टब बाय जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट की कौन कौन सी है, एक तो टेल ऑफ टब हो गई, और एक कौन सी आई थी, प्रोज बुक आई थी। बुक कौन सी थी, द बैटल ऑफ बुक, द बैटल ऑफ बुक और टेल ऑफ टब इज रिलीजियस एलेगरी बाई जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट की लॉन्गेस्ट फेमस वर्क कौन सा है, गुलिवर्स ट्रेवल। जोनाथन स्विफ्ट का लॉन्गेस्ट जो मोस्ट फेमस वर्क है वो कौन सा है, गुलिवर्स ट्रेवलर। अनदर इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ जोनाथन स्विफ्ट इज मॉडेस्ट प्रपोजल। मॉडेस्ट प्रपोजल है ये जोनाथन स्विफ्ट का अनदर वर्क है। सैमुअल जॉनसन, इसके बाद में मॉडेस्ट प्रपोजल किसका, जोनाथन स्विफ्ट का। मॉडल तो जोनाथन स्विफ्ट के ध्यान रख लो। द बैटल ऑफ द बुक जोनाथन स्विफ्ट, और एक रिलीजियस एलेगरी थी जोनाथन स्विफ्ट की, वो कौन सी थी, जोनाथन स्विफ्ट की वो थी टेल ऑफ अ टब। टेल ऑफ टब ये एलेगरी थी जोनाथन स्विफ्ट की। और कौन सी, गुलिवर्स ट्रेवल्स, बहुत लंबी पोइम थी, लिरिक पोइम नहीं यानी वर्क था, फेमस वर्क था गुलिवर्स ट्रेवल्स से जोनाथन स्विफ्ट का, बहुत वर्क था लिरिकल। और एक और लिखा था जोनाथन स्विफ्ट ने मॉडेस्ट प्रपोजल जोनाथन स्विफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था। इसके बाद में आते हैं सैमुअल जॉनसन। 1709 से 1704। सैमुअल जॉनसन वेरी फेमस वॉर ही डिक्शनरी लिखी थी 1755 में। सैमुअल जॉनसन की वर्क है द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेज इज अ वेल नोन पोइम बाई सैमुअल जॉनसन। द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेज ये सैमुअल जॉनसन की पोइम है, बेस्ट नॉन पोइम है सैमुअल जॉनसन की। द वैनिटी ऑफ ह्यूमन सैमुअल जॉनसन। जोनाथन स्टार्टेड अ पेपर नेम्ड द रैम्बलर। पेपर स्टार्ट किया था जोनाथन, ये सैमुअल जॉनसन ने कौन सा पेपर स्टार्ट किया, द रैम्बलर। और सैमुअल जॉनसन ने लिखा क्या था, वैनिटी, यानी कि द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेज सैमुअल जॉनसन। और द लिव्स ऑफ द पोएट्स, ये भी सैमुअल जॉनसन की। और इन्होंने एक पेपर स्टार्ट किया था सैमुअल जॉनसन ने, रैम्बलर। सैमुअल जॉनसन की जो द लिव्स ऑफ द पोएट्स इंट्रोड्यूस 52 पोएट्स, कितने पोएट्स को, 52 पोएट्स के बारे में, इनको इंट्रोड्यूशन के बारे में लिखा था सैमुअल जॉनसन, इंक्लूडिंग इसमें कौन कौन से, डन, ड्राइडन, पॉप, मिल्टन, ग्रे। डन, ड्राइडन, पॉप और ग्रे इसमें सम्मिलित थे। द लाइव्स ऑफ द पोएट्स 52 पोएट्स की लिखी थी। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट जॉनसन इज टेकन फ्रॉम हिज फ्रेंड जेम्स बॉसवेल की बायोग्राफी से हमें सैमुअल जॉनसन के बारे में ज़्यादा पता चलती है। एडवर्ड गिब्बन इसके बाद में आया था सैमुअल जॉनसन की एज में, कौन आया था, एडवर्ड गिब्बन। सैमुअल जॉनसन की एज में आया था एडवर्ड गिब्बन, सैमुअल रिचर्डसन ये आए थे। तो एडवर्ड गिब्बन फेमस फॉर द ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल वर्क द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर किसकी, एडवर्ड गिब्बन की। एडवर्ड गिब्बन न्यू क्लासिकल एज के राइटर है। और इनका जो पोइम है कौन कौन सी है, एक तो है द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, ये बहुत प्रसिद्ध है एडवर्ड गिब्बन का। द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, एडवर्ड गिब्बन। और इसके अलावा एडवर्ड गिब्बन का एक तो हो गया डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, और द बर्थ ऑफ इंग्लिश नॉवल, ये भी एडवर्ड गिब्बन का है। द इंग्लिश नॉवल प्रॉपर वॉज बॉर्न अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। सैमुअल रिचर्डसन, ये भी न्यू क्लासिकल एज की पोइट है। कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल के फादर कहे जाते हैं सैमुअल रिचर्डसन। न्यू क्लासिकल एज के पोइट है, ये राइटर है सैमुअल रिचर्डसन, और फादर कहे जाते हैं सैमुअल रिचर्डसन इंग्लिश नॉवल के। सैमुअल रिचर्डसन पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नॉवल पामेला नॉवल इन्होंने पब्लिश की थी। सैमुअल रिचर्डसन इंग्लिश नॉवल के फादर कहे जाते हैं रिचर्डसन। और सैमुअल रिचर्डसन को ने कौन सी लिखी थी, फर्स्ट नॉवल था सैमुअल रिचर्डसन का पामेला, कौन सा था, पामेला। और वर्च्यू रिवार्डेड, और कौन सा, यानी कि या तो इसको पामेला कहते हो या क्या कहते हो, वर्च्यू रिवार्डेड इन 1740
ऑल दिस है ना 47 में की थी. दिस नॉवल इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स. दिस दस पामेला इज एन एपिस्टोलरी नॉवल. पामेला थी सैमुअल रिचर्डसन की, वो कहती है एक एपिस्टोलरी नॉवल थी. सैमुअल रिचर्डसन नेक्स्ट नॉवल क्लैरिसा हार्लोव. क्लैरिसा हार्लोव भी सैमुअल रिचर्डसन. क्लैरिसा हार्लोव सैमुअल रिचर्डसन. क्लैरिसा हार्लोव सैमुअल रिचर्डसन. क्लैरिसा हार्लोव है सैमुअल रिचर्डसन का ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड इन फॉर्म लेटर्स. मैनी क्रिटिक कंसिडर्स क्लैरिसा एज रिचर्डसन्स मास्टरपीस. हेनरी फील्डिंग, ये भी न्यू क्लासिकल एज के पोइट, ये राइटर है. हेनरी फील्डिंग पब्लिश जोसेफ एंड्रयूज इन. जोसेफ एंड्रयूज लिखी थी हेनरी फील्डिंग ने. जोसेफ एंड्रयूज लाफ्स एट सैमुअल रिचर्डसन्स पामेला. हिज ग्रेटेस्ट नॉवल इज टॉम जोन्स. हेनरी फील्डिंग लास्ट नॉवल इज अमेलिया. टॉम ग्रेटेस्ट नॉवल कौन सी है हेनरी फील्डिंग की? टॉम जोन्स. और इसके अलावा हेनरी फील्डिंग की और कौन सी है? लास्ट नॉवल इन अमेलिया. लास्ट नॉवल इन अमेलिया, ये भी किसकी है? हेनरी फील्डिंग की. लास्ट नॉवल इनका कौन है? अमेलिया. हेनरी फील्डिंग का लास्ट नॉवल कौन सा है? अमेलिया. टेबॉइस सोमलेट wrote a picturesque novel titled The Adventure of Roderick Random. जो टोबियस स्मोलेट है, इनके अदर नॉवल है द एडवेंचर ऑफ फर्डिनेंड एंड हम्फ्री क्लिनिकर, ये भी स्मोलेट की है. डेनियल डिफोय की ग्रेटेस्ट वर्क है रॉबिन्सन क्रूसो. इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नॉवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज बाई डेनियल डिफोय की रॉबिन्सन क्रूसो की है. डेनियल डिफोय कौन सी एज में थे? ऑगस्टिन एज में. डेनियल डिफोय स्टार्टेड ए जनरल नेम द रिव्यू. डेनियल डिफोय ने एक जो जनरल स्टार्ट किया था उसका नाम था रिव्यू. क्या नाम था? द रिव्यू. और डेनियल डिफोय के वर्क में इस पर कौन सी नॉवल कौन सा है? रॉबिन्सन क्रूसो. लॉरेंस ईस्टन इज चीफली रिमेंबर्ड फॉर हिज मास्टरपीस ट्रिस्ट्रम शैंडी के लिए जाने जाते हैं लॉरेंस ईस्टन. विच और पब्लिश्ड इन 1760 में पब्लिश हुई थी. ट्रिस्टन शैंडी किसकी है? लॉरेंस ईस्टन की. आउटस्टैंडिंग की राइटर है, ये न्यू क्लासिकल एज के राइटर है, सैमुअल जॉनसन की एज के लॉरेंस ईस्टन. अनदर इम्पोर्टेंस वर्क ऑफ लॉरेंस ईस्टन इज अ सेंटिमेंटल जर्नी. ट्रिस्टर्म शैंडी ए सेंटिमेंटल जर्नी, ये वर्क्स है किसके? लॉरेंस ईस्टन के. ईस्टन ब्लेंड्स ह्यूमर एंड पैथोज इन हिज वर्क. ब्लेंड्स ह्यूमर और इसमें मिश्रण था ह्यूमर एंड पैथोज का वर्क में लॉरेंस ईस्टन के. इनके वर्क कौन कौन से है लॉरेंस ईस्टन के? ट्रिस्टर्म शैंडी और ए सेंटिमेंटल जर्नी लॉरेंस ईस्टन के. होरेस वॉलपोल इज फेमस बोथ एज ए लेटर राइटर एंड ए नॉवलिस्ट. होरेस वॉलपोल वन ऑफ द only novel The Castle of Otranto deals with the horrifying and supernatural theme. Other terror novelists, Gothic novelists include William Beckford और मिसेज एन रेडक्लिफ. गॉथिक राइटर अन्य कौन है? विलियम बेकफोर्ड और मिसेज एन रेडक्लिफ.